خدا یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبھی کو السلام ہو۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خدا اپنے فضل آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا ہم سب خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ پریز اللہ، ہاللیلویا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، کلام مقدس میں لکھا کہ خدا کا کلام بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو آج کا خوبصورت کلام جو خدا نے ہمیں دیا سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ اپنے ہاتھ دکھائیے ذرا، کتنے لوگ؟ سبھی تیار ہیں۔ تو آپ یہ ہاتھ صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے اٹھایا؟ خداوند کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں یا قول کرتے ہیں تو اس وعدے اور قول کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ تو آئے ہم اپنی مرکزی آیت خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت کو ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ تلاوت خدا کے خادم پاسٹر فیصل ایمان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرنے میں ہمارے ساتھ رہنمائی کر دیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے مقدس لوکا طبیب کی انجیل مقدس اس کا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور پاک کلام میں یوں لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب کر اور ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالے گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، یہ وہ کلام جو روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا، خدا کے خادموں کے وسیلہ سے اسے قلم بند کیا گیا تاکہ یہ ہم تک پہنچے اور اس کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی میں اچھے دن دیکھ سکیں۔ کلام مقدس میں ابھی بڑی خوبصورت آیت جو ہم نے تلاوت کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے۔ پہلے تو ہم ان 2 باتوں پر ذرا خیال کرتے ہیں کہ ہم نے خداوند کو کس طرح سے جو وقت ہے یا باقی کا جو پروسیسر ہے وہ ہم خدا کے ساتھ کیسے گزارتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ بولتے رہے ذرا، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اب خداوند خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہم جو انسان ہیں خدا کو کس بات میں اور کس چیز کے اندر پورا وقت یا پورا حصہ دیتے ہیں۔ ہم نہ تو دعا کرنے میں اپنا پورا وقت خدا کو دیتے ہیں، نہ ہدیے میں خدا کو پورا حصہ دیتے ہیں، نہ دائیکی میں خدا کو پورا حصہ دیتے ہیں، اور خدا کے آگے ہم اپنی دعائیں تو بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں کہ خدا تو ہمیں یہ دے وہ دے، مگر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو، جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی پیمانہ
हिस्सा देते हैं वक्त के लिहाज से। अगर इबादत का टाइम खुदा के खादिम ने 8 से 9:30 बजे रखा तो हम कितने बजे पहुंचते हैं? 9 बजे, 8:30, 8:45, यही टाइम है। तो बाकी का हिस्सा कहां गया? फिर हम अगर खुदा के कलाम के मुताबिक दयायकी की बात करते हैं या हदिये की बात करते हैं तो उसमें क्या हम दियानतदार हैं? खुदा हमारी जिंदगियों से, हमारे रवैयों से, हमारे कल्चर से, हमारे अंदाज से वो इस बात से बहुत ज्यादा गमगीन है कि ये सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। क्या हमें पता नहीं है कि हम तक ये खुदा का कलाम नहीं पहुंचा? और अगर हम समझते हैं, अगर हम इस बात को परखते हैं कि हम खुदा के साथ मुखलस हैं तो मुखलसी का सबूत पेश करें, सबूत पेश करें। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा आपसे प्यार करता है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसका हमने एक अनुमान रखा था, दयायकी से गुर्बत का खात्मा। किससे? दयायकी से गुर्बत का खात्मा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशहाली आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों से गुर्बत खत्म हो जाए तो फिर अपनी दयायकी पूरी ज़ख़ीरा खाना के अंदर लाएं और फिर देखिए खुदा आपकी जिंदगी में कैसे बड़े काम करता है। खुदा फिर काम करता है, क्योंकि जो बोता है वही काटता है और जो बोता नहीं वो काटता नहीं। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा आपसे फरमाता है कि अपनी पूरी दयायकी कहां लाओ? ज़ख़ीरा खाना में, खुदा के घर में, खुदा की हक़ में, खुदा के खादम को दो। मगर हम इस बात को फॉलो नहीं करते, समझते नहीं। हम समझते हैं, हमें कोई ऐरा गहरा आकर कह देता है और नहीं तुसी हदिये ना दिया करो, केड़ी एडी पाबंदी है। मगर वो खुदा के कलाम से बड़ा नहीं है। खुदा का कलाम जो है वो सबसे बड़ा है, जो सबकी जिंदगियों को तब्दील कर देता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले। मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, मलाकी की किताब, मलाकी 3 बाब, और उसकी हम आयत जो है मलाकी 3 उसकी 8वीं आयत से शुरू करते हैं। खुदा के क्या कलाम में लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा? दयायकी और हदिये में। बस तुम सब मलाऊन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौमों ने मुझे ठगा। पूरी दयायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा। तो मेरे अजीजों, पहली बात तो क्या है कि हम खुदा के कलाम में क्या लाएं? पूरी दयायकी लाएं। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक हमें अपनी पूरी दयायकी जो है वो ज़ख़ीरा खाना में लाने की जरूरत है। और अगर कोई शख्स कहता है कि मैं बहुत खुदा के साथ मुखलस हूं, वफादार हूं, तो खुदा का कलाम फरमाता कि तुमने मुझे, ऊंची बोलिए जरा, तुमने मुझे। आज कितने लोग ठग दे, जरा हाथ खुला करो, होनी किसी ने भी हाथ खड़ा करना।
क्योंकि वो ठगन दी वारी आई और जदों किसी को पता चल जाए कि इन्हां ने मैनू ठगिया है तो ठगिया होया पैसा भी तोड़े तो वसूल कर, मगर खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके सारे गुनाह जो है वो बख्श देता है और फिर भी कहता है कि तुम अपनी पूरी दाई की ज़ख़ीरा खाना में लाओ। आपको पता है कि जब यीशु मसीह हैकल में खड़े थे तो फकीरों ने यीशु मसीह पर इल्जाम लगाने की कोशिश में उससे कहा कि क्या वाजिब है कि जो हदिया या जो रुपया पैसा वो कैसर को देना चाहिए। तो मगर यीशु मसीह का जवाब क्या था? जो कैसर का है, जो खुदा का है, आज लोग की खुदा दा भी कैसर नहीं दी जाती। अब कैसर कौन है? कोई बता सकता है? कैसर हुकूमते हैं। आप बिल ना उतारे, मैं देखता हूं कैसे लाइट जलाते हैं। आप जलाएंगे? आप अगर वो पंजाबी में जिसे कहते हैं कुंडी भी लगाए तो वो भी आप लगाएंगे तो आपको सजा हो जाएगी। मगर खुदा आपसे ऐसा नहीं करना चाहता। आप क्यों नहीं अमीर होना चाहते? आप क्यों अपनी सारी जिंदगी लोगों के हाथ आगे अपनी हथेली को करना चाहते हैं? मगर कलाम मुकद्दस को देखिए, उसे पढ़िए, उसे छांचिए, उसे परखिए, लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जब आप पूरी की ज़ख़ीरा खाना के अंदर लाएंगे या अपनी पूरी ईमानदारी के साथ खुदा के दिए हुए में से खुदा को देंगे तो फिर खुदा आपके कभी भी बुरे हालात नहीं आने देगा। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो मुझे ठगते हैं मैं फिर उनकी टुकड़ियों को सराख कर देता हूं। कैसे पैसे जमा करते हो? अगर हम अपनी ईमानदारी के साथ खुदा को अपना हदिया दे या अपनी दायगी दे या अपनी प्रस्तुति करे या अपनी दुआ में टाइम से पहुंचे तो खुदा हमसे खुश नहीं होगा। खुदा हम जितने बैठे हैं यहाँ पर सभी जो हैं वो टाइम से हटकर भी आते हैं और टाइम पर भी आते हैं। मगर यहाँ पर अगर खुदा का खादम पास्टर फैसल की बात करेगा, किसी की के टाइम पर कौन आता है तो उसी की बात करेगा जो सबसे पहले आता है। तो आपने ये इस बात का ख्याल होना चाहिए, इस बात की तड़प होनी चाहिए कि मैं हर महीने अपनी दायगी जो है सबसे पहले खुदा के घर में लाऊंगा, जिससे खुदा के घर में खुराक हो, जिससे खुदा के घर का निजाम चल सके, जिससे खुदा के काम की बशारत हो सके। और अगर हम दायगी या हदिये सिर्फ कैसर को देते रहेंगे तो फिर हम सारा खानदान काम करके देख लें, दिन रात काम करके देख लें, आपके रुपए पैसे में बरकत नहीं है। क्योंकि बरकत तब नहीं है क्योंकि हम अपनी दायगी पूरी खुदा को नहीं देते। अगर खुदा का 1000 बनता है तो जब हम ले जाने के लिए कहते कि अब मैं खुदा के घर में 1000 रुपया देने को हूं तो हमारे दिल में शैतान बात डालेगा, तू 1000 रुपया देने लगा, नहीं काट कर ले ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਲੋ 800 ਦੇ ਦੇਣੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਕੱਢ ਲਈਏ ਵੀ ਬੜੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? 500 ਰੁਪਏ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपनी दायगी खुदा दे घर च पूरा लियाओगे, पूरी लियाओगे ते खुदा तानू गड्डी की लैंड क्रूजर भी दे देगा। क्योंकि खुदा दे कलाम दे विच लिखिया है कि पूरी दायगी जदों असीं खुदा
खुदा ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਡਬਲ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨਾ। वाहिद ये जगह है जहां से हमें उम्मीद होती है, जहां से हमें आस होती है कि मैं खुदा के घर में जाता हूं, दुआ करूंगा, खुदा के खादिम से कहूंगा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे हालात बदल जाएं, मेरे रुपए पैसे पर बरकत आ जाए, हमारे घर की आटे वाली मट्टी पर बरकत आ जाए, तेल की कुप्पी पर बरकत आ जाए, और खुदा अपने खादम के जरिया से काम करता है और खुदा उसे मल्टीप्लाई करता भी है। आप देखिए कि खुदा बड़े अजीब काम करता है। जब खुदा के बंदा एलिया ने एक औरत से कहा कि तुम मुझे रोटी खिला, उसने कहा कि एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में तेल है। तो उसने कहा कि तू मुझे रोटी खिला। उसने काल का दौर चल रहा है और उसने कहा मैं और मेरा बेटा वो खाएंगे और मर जाएंगे, मगर उसके दिल में ये बात भी आ गई ये खुदा का खादिम है तो मैं इसे रोटी खिलाती हूँ। जब उसने रोटी खाई, रोटी खाकर उसने दुआ की और उसने क्या कहा कि जा तेरे घर की आटे की मट्टी से कभी आटा खत्म ना होगा और तेल की कुप्पी में से कभी तेल खत्म ना होगा। ते आज दे लोगों को जो पता लग जाए कि पादरी आंदे है उन्होंने गोश्त लगा देना ते दाल काट लेनी है, भाई सब दाल ही पकी है खानी चाहिए। क्या ये कैसी बरकत है? ये बरकत है? क्या आप क्या कर रहे हैं? हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि हम खुदा के खादमों से कैसा रवैया कर रहे हैं। हमें अपनी पूरी लायकी खुदा के घर में लाने की जरूरत है। और मैं आपको ये तमसीलें इसलिए देता हूँ कि माजी में अगर आपसे हो गया है या आप कर बैठे हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है अगर तू इकरार करेगा तो मैं तुझे मुआफ कर दूंगा। आप खुदा के खादम को अपनी पूरी लायकी दे ताकि खुदा के घर को डेकोरेट किया जाए, खुदा के घर की चीजें लाई जाए, खुदा के घर को जो खूबसूरत किया जा सके। और फिर उसके अलावा जो बाकी का रुपया पैसा है वो अंजीर की बशारत को सुनाने में लगे ताकि गांव, शहरों, बस्तियों, मोहल्लों, गांवों के अंदर जाकर खुदा का कलाम पहुंचाया जाए आपके रुपए पैसे से। तो क्या हम अपना रुपया पैसा इस काम के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते? मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, हमें कोई किसी बात का पता चल जाए, कोई बंदा शख्स ये खबर दे दे कि आपने 250 रुपया या 200 रुपया जमा करवाना है और उससे आपको 1000 रुपया मिल जाएगा। कोई फलानी मिशन या कोई एनजीओ या कोई दारा दे रहा है तो हम नहीं रुकेंगे। हम कहेंगे भावे का चाहता हो भैया ना वैसे 200 दे के फॉर्म फिल करा लेंगे ताकि ज्यादा आ जाए। मगर मैं आज आपसे कहता हूं कि आप खुदा को देखकर देखिए, आप खुदा को देखकर देखिए, खुदा आपके घरों में आसमान के दरीचे खोल देगा, खुदा आपको बरकतों से मालामाल कर देगा, आपकी जेबियों में पैसा होगा, आपके आटे वाली मट्टी में आटा होगा, आपकी तेल वाली कुप्पी में तेल होगा, क्योंकि आपने खुदा के घर में दिया है। और जब आप देंगे तो खुदा भी आपको देगा। और इसी हवाले को आप जाकर, ये काफी लंबा हवाला है मलाकी की किताब में, तो आप इसे जाकर पढ़ लीजिए कि खुदा के कलाम में लिखा कि वो आपके लिए आसमान के दरीचे नहीं खोलता या नहीं। जब सी मुश्किल है चुने तो किने के दुआ करने कि खुदा सानू देता या नहीं। खुदा हमें देता है, खुदा हमें ब्लेस करता है, खुदा ना उम्मीद से भी उम्मीद को पैदा करता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये ना समझिए कि ये सिर्फ देने तक बात है, या हदिया या टाइम।
इस पर अमल करने की जरूरत है। आप अमल कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू कीजिए। अगर आपको पता कि आपके काफी सारे कर्जे हैं, आपकी काफी सारी मुश्किलातें हैं, आपके हालात काफी टाइट हैं, तो आप समझते हैं कि अभी हम नहीं दे पाते, तो आप कोशिश कीजिए, आप स्टार्ट जो है बीज बोना शुरू कीजिए। आप उस बीज को जब बोएंगे, वही बीज जो है एक फलदार साबित होगा, वही बीज फलदार साबित होगा। गंदम को कितने लोगों ने उगते हुए देखा है? गंदम का सिर्फ एक दाना जमीन के अंदर बोते हैं, कितना? एक, और एक गंदम का दाना कितने दानों को साथ बाहर निकालता है। आप भी अपने जो हदिये को है खुदा के हुजूर लाना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, मगर दीजिए जरूर, अपनी मुट्ठी को बंद ना कीजिए। ज़बूर के अंदर लिखता है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता और हजारों को सैर करता है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर बेशुमार इस टॉपिक के हवाले हैं। अमसाल 3 बाब उसकी 9 आयत है, उसके अंदर लिखा कि तू अपने सारे माल और अपनी सारी पैदावार के फलों से अपने खुदावंद की क्या कर, तमजीद कर, उसके हुजूर ला। तो हम किसी बात को भी फॉलो नहीं करें। हमें चाहिए कि हम खुदा को अपनी पहली पहली पैदावार जब हम काम करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम जब अपनी मेहनत की कमाई अपने घर में लाते हैं, अपने बच्चों में लाते हैं, तो हमें चाहिए कि सबसे पहला उसका हिस्सा निकालें जिसने पूरे महीने में आपको सेहत दी, जिसने पूरे महीने में आपको संभाला। आप गाड़ियों के बीच से गुजरते, खुदा आपको संभालता। आप अंधेरों में गुजरते, खुदा आपको संभालता। आप मेहनत करते, खुदा आपको ताकत बख्शता। आप उसका हदिया, उसका हिस्सा पहले निकाले, बाकियों को बाद में दे। और आज के दौर में लोग क्या करते हैं? पहला हिस्सा दुकान का, फिर बिल का, फिर उस तो बाद जेड़े दूसरे फड़े फुड़े होंगे ने उन्हां दे पैसे देंगे, ते बाकी जेड़ा बचदा कोई 200-250 रुपया ओदे जो 100 घर दी फिक्र होंदी, कहंदे 100 दे। खुदा ने कभी ऐसा पूरे महीने में आपको किया? खुदा ने कभी आपको अकेला छोड़ा? अगर वो अपना हाथ उठा ले तो क्या होता है? तबाही हो जाती है, फिर कोई आपकी सपोर्ट करने वाला नहीं। खुदा पर तवक्कुल कीजिए, खुदा पर अपनी निगाहें लगाएं, खुदा पर अपनी सोचें लगाएं, फिर देखिए खुदा आपको कैसे मालामाल करता है। और मेरे अजीजों, इस महीने से बल्कि आज से ही अगर खुदा आपको बरकत देता है, ब्लेस करता है, आपके घरों में है, तो खुदा को अपनी दयाकी पूरी ला कर दीजिए और इससे सबूत पेश कीजिए कि आप खुदा के चनीदा हैं, आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, आप खुदा के फर्जंद हैं, आप उसके बेटियां और बेटे हैं। और आपने इस बात को साबित कर दिया है और इब्लीस को शर्मिंदा कर दिया है, जो आपको रोकता है कि दयाकी ना दो, हदिये ना दो। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, लो खुदा मेरा साढ़े हदिये में चंदिया ना भुखा है। गल जेब च कर दो, अगर यह गल खुदा दे कलाम च लिखी होंदी ते मैं मान लेंदा, मगर खुदा दे कलाम च लिखिया कि तुसी दवो ताकि तानू भी दिता जाए। फिर खुदा ने वासिया तौर आखिरी पुराने अहदनामा की आखिरी किताब के अंदर फरमा दिया कि तुम मुझे ठगते हो। क्या करती हो? ठगते हो। तो फिर एरा मतलब कि सी बाकी खुदा नू ठग रहे, जेड़े हदिये दयाकियां या चंदे खुदा दे काज च नहीं ले आंदे, ओ की ने फिर? उच्ची बोलो, की ने फिर? होना ठग दी वाली है, बात नहीं खत्म की है? ठगने आ असी खुदा नू ठगने आ, असी जमीन ते लोकां नू भी ठगने आ, अई झूठ मार के लोकां तो पैसे ले। मगर खुदा ताडे अगे इस गल नू रखदा है कि तुसी मुड़ो, पुरानियां रावां तो मुड़ जाओ, वापस अपने रास्ते पे आ जाओ, ते
खुदा तानू बरकतां नाल माला माल करेगा। तो मेरे अजीज भैनों ते भरावो, खुदा तानू इस कलाम दे इवज बड़ी बरकत देवे। खुदा तानू इस कलाम ते अमल करन दी तौफीक देवे। खुदा नू कहो ताकि खुदा तानू देवे। आज बहुत से लोगों पर अपनी आसें उम्मीदें लगाई हुई हैं कि मुझे वो देगा तो मेरा कर्जा उतर जाएगा, अगर वो देगा तो मेरे घर का जो प्लस्तर है वो हो जाएगा, घर की छत पड़ जाएगी, मकान पड़ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई किसी से नहीं उम्मीद, सिर्फ खुदा से उम्मीद। खुदा आपको देगा और आप ईमान के साथ खुदा के हुजूर बोलिए। जब आप खुदा के हुजूर बोलेंगे तो खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। हालेलुया। तो आए हम सब खड़े होकर ये दुआ करेंगे। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत देगा। आज आपने खुदा के साथ अपने अहद को करना है। आज आपने खुदावन के साथ इस बात को रखना है कि खुदावन खुदा मुझे इस बात पर अमल करने की तौफीक दे। अपने हाथ उठाए और अपनी आंखें खुदावन की तरफ लगा लीजिए, क्योंकि खुदावन खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद कहता मैं अपनी आंखें उठाता और खुदावन से मदद मांगता हूँ। आज मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, आज खुदावन से मदद मांगिए कि खुदावन आपको इस बात में मदद दे कि आप पूरी यकी अपना पूरा हदिया, अपना पूरा टाइम जो है खुदा को दे सके, ताकि जिससे खुदावन खुदा आपसे खुश हो, जिससे खुदावन खुदा आपको बरकत दे, जिससे खुदावन खुदा आपके हालात बदल दे, जिससे खुदावन खुदा आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आए, जिससे खुदावन खुदा आपको ताजगी बख्शे, जिससे खुदावन खुदा आपके कारोबार में भी बरकत ले आए। खुदावन से मदद मांगिए, सभी दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। आज शर्माइए ना, क्योंकि शर्माने का वक्त नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो मुझसे शर्माते हैं मैं आखिर के रोज उनसे शर्माऊंगा। और खुदावन खुदा से कहिए कि खुदावन खुदा तू मेरी फरियाद को सुन, और मैं आज इस बात का अहद करता हूँ कि खुदावन खुदा मैं अपने कारोबार में से अपनी पूरी यकी ज़खीरा खाना के अंदर लाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। टूटते जाए, बंधन टूटते जाए। आप खुदावन के लिए बंदा करिए। तेरा शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज बड़ा खूबसूरत कलाम बयान किया कि हम तेरे नाम से खुदावंद तेरे कलाम को सीखें। अरे खुदावंद तेरे नाम से अपने हकीकत नजराने, अरे खुदावंद अपनी तैयारियां तेरे हुजूर लाएं, ताकि तू खुदावंद हमसे खुश होकर हमें बरकतें दे, हमें कूवतें दे, हमें खुदावंद अपने वादे के मुताबिक कौमे में राज के लिए दे दे। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तस्बीह करते हैं और तुझे अपनी जिंदगी में बरकत करते हैं। कि यीशु के नाम से हमारी जिंदगियों में मोजज़ात कर। अरे खुदावंद देख कलीसिया तेरे हुजूर खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक चलने वाला बन जाए। अरे खुदावंद देख तेरे नाम को जला देती रहे। हालेलुया। आप खुदावंद देख यीशु के नाम से हर एक बंधन जो पुलिस ने बांधा है आज तेरे बेटे के साथ, तेरे बंदा के साथ, तेरे खादिम के साथ मिलकर मैं पुलिस के सारे बंधनों को, सारे जुल्म को सभी दुआ करें, खुदा से मदद मांगिए, बंधनों को टूटते हुए देखिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरी शुक्रगुजारी हो। यीशु के नाम से और हमारा तेरी हजूरी में झुकना, तुझे पुकारना, अरे खुदा तेरी कलीसिया का इकरार करना तुझे पसंद आए। अरे खुदा देख अपने बच्चों को खुदा नबी से बरकत दे, ताकि वो तेरे जन्मदिन के दिन को खुदा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके। अरे खुदा देख वो तुझसे मदद करे, अरे खुदा नशेबाजी से बाज रहे और हर वक्त खुदा तेरी शुक्रगुजारी
हालेलुया तेरा शुक्र तेरा शुक्र खुदा देख तेरे बेटियों के लिए तेरे बच्चों के लिए तेरे बेटों के लिए तेरी शुक्र तेरी बरकत को चाहता हूँ यस खुदा तो खुदा हम सबको छूना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से आमीन।